So there are so many things in punishments which one should know. And if you read punishment, please read in reference with Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita also. Because the substantive part is given under BNS, but the procedure part, how to impose such a punishment, is given under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. See the technicalities first, because if you go through the BNS, then you will find key what are the punishments, how punishments imposed, yes. Then what amount to fraction of terms of punishment, commutation of sentences, then where amount of fine is given, and if no fine is given, then what will be the punishment. Then again about solitary confinement and all. Okay, basic thing. Sorry. Yes, if there is a fine and you are make default in the payment of fine, then what will be the punishment in default of fine? This is a basic thing. But when you go through the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, then you will find some technicalities. Say for example, you are a JMFC and you are authorized to give maximum punishment of, say for example, 3 years. And if you found a person who committed 3 offenses and where the punishment will be 3 year, 2 year, 1 year. समझना मेरी बात को. In punishment in Bharatiya Nyaya Sanhita, it is only given the substantive effect of a law. Am I right? But when it comes to execution, then you have to go through the criminal procedure, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Now what I want to convey is ki what kind of technicalities you will find in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. As in BNS, it is very simple to understand ki punishment, fraction of punishment, commutation of sentences, amount of fine in default of payment. It's very easy to understand. But now in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, what kind of technicalities you will get? Say for example, you are a JMFC, Judicial Magistrate First Class, and you have the power to impose 3 years of punishment maximum, say for example. And now during a trial you found that a person have committed theft, trespass, hurt, okay, then say for example the punishment will be like 3 year, 2 year or 6 months. तो सबको प्लस कर दोगे तो कितना होगा? 5 year, 6 months. Now whether as a magistrate first class, whether you can impose all the punishments or not. Are you getting my point? Yes, तुमने इसलिए बोला कि एक ऑफेंस कितना बड़ा है वो देखा जाएगा. So मेरा नहीं आ रहा, तो ये टेक्निकलिटीज है, वेरी गुड कि आपको आता है. Then second kind of a technicalities कि से फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट हुआ, फाइन हुआ, मतलब आई मीन टू से थेफ्ट का पनिशमेंट हुआ 2 साल का और फाइन लगा दिया से फॉर एग्जाम्पल 1000, 10,000. इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन अगेन आपको वहां पे इम्प्रिजनमेंट होगा. दोनों को क्लब करने से 5 साल और 4 साल हो रहा है, मान लो 3 साल से ज्यादा हो रहा है, तब क्या जेएफसी दे सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना ऑनलाइन फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग द टेक्निकलिटीज ना? So this kind of technicalities you have to go through the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. At least for punishment, I will discuss about the law. ठीक है? At least for punishment, not for other maybe. तो इसीलिए आज हम क्लास में थोड़ा सा punishment को देखते हैं, ठीक है? फिर कल की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कनेक्ट करें इसके साथ. Is it okay? Please take out punishments. The punishments to which offender are liable under the provision of this Sanhita. Punishment. See, punishment क्या होता है? जब कुछ आप गलत करते हो तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है ना? पनिशमेंट वर्ड को सुनने के साथ साथ आपके दिमाग में आ जाता है इम्प्रिजनमेंट, है ना? नहीं, जनरल माइंडसेट पनिशमेंट बोलने से ये आता है कि इम्प्रिजनमेंट होगा, बट एक्चुअली पनिशमेंट सिर्फ इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है. आप बीएनएस में whatever you the punishment you will find, like the 6 punishments you will find, 6 types of punishments, then you will find कि yes, these are the punishment can be imposed against a person, on a person. But if you go through the punishment section 4, please take out, everyone please take out section 4. When you go through the section 4 of Bharatiya Nyaya Sanhita, the first punishment you will find is, and the 6th punishment you will find is community. Online, am I audible? The first, death. Last, commutation of sentence. I meant to say community service.
नाउ सिंपल क्वेश्चन सेक्शन 4 से सिंपल बात पूछ सकता है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है ना, न्यूली इंसर्टेड एक्स वाई जेड पूछ सकता है। लेकिन इसका जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन क्या आ सकता है? अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो नो प्रॉब्लम, है ना, बट इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो डिफरेंट पनिशमेंट्स आपको पूछ सकता है, ठीक है। बट इसका जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन क्या आ सकता है अबाउट द अरेंजमेंट, व्हाट कि मुझे भला नहीं था इस्लाम कि पहले डेथ है तो नीचे कम्युनिटी सर्विस है, तो जो इसको क्यों ऐसे अरेंज किया गया, इसका अगर आप जूरिस्प्रूडेंस को देखते हो तो आपको पता चलेगा इनडायरेक्टली मेंस रिया। हाउ इनडायरेक्टली मेंस रिया? बिकॉज मेंस रिया जितना एग्रेवेटेड होते जाएगा पनिशमेंट उतना सीवियर होते जाता है, तो द मोस्ट एग्रेवेटेड फॉर्म के लिए जो पनिशमेंट है वो यहाँ दिया गया है। फिर आएगा क्या? इम्प्रिजनमेंट फॉर ठीक है, देन क्या है? देन इम्प्रिजनमेंट, पहले क्या है? रिगरस है, दूसरा क्या है? Now try to understand this. Again you will find that within imprisonment also aggravated form is given first, then the normal, ordinary, simple imprisonment. Okay? Then you will find forfeiture of property. Then you will find then community service. तो समझ रहे हैं ना, डेथ दे दिया, लाइफ, फिर क्या होगा उससे कम, क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, फिर दिया कि नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट है, वो भी क्या है? पहले रिगरस या फिर सिंपल, फिर क्या है? फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर है फाइन, फिर है कम्युनिटी सर्विस। तो आपको लग रहा है नहीं लग रहा है? फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी बड़ी बात है ना, फाइन बड़ी बात है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फाइन और कम्युनिटी सर्विस, फाइन। तो इसीलिए यू विल फाइंड कि यू कैन इजीली सी कि ओके यहाँ पनिशमेंट ज़्यादा है क्योंकि ये एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ मैंसरिया है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगेन डेफिनेटली नेचर ऑफ द ऑफेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इंटेंशनली तुमने घुसा मारा मुझे और इंटेंशनली तुम्हारे घुसा मारने से मैं मर गया, तो डेफिनेटली द ऑफेंस इज डिफरेंट। तो अगेन पनिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑफेंस, but within the offense if you go through the aggravated then again it is the mens rea, ठीक है। तो generally this is the chronological arrangement is based on the mens rea. The more aggravated form of the offenses, the more severe will be the punishment. Okay, then उसके पीछे अगर हम जाते हैं थ्योरीज के ऊपर जाते हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ा होगा ना दीपू, की पोइसा दीपू थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और डेटरेंट। डेटरेंट माने क्या होता है डेटरेंट में? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डेटरेंट। डेटरेंट ना, आर यू ऑल एग्री कि देयर इज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट इज डेटरेंट थ्योरी, बेस्ड ऑन डेटरेंट थ्योरी? क्या होता है देखो? इम्प्रिजनमेंट फॉर समथिंग, नहीं? ओके, यस मेनमॉय। Sometimes when we have heinous crimes, accused, the offender is given death penalty. So the society knows that such an example is set for the other criminals. So deterrent, the object. See, when I'm asking, first bench, when I'm asking you, कि there are different forms of punishment देखो, and for different form of punishment, different theories of punishment में ultimately यही होगा मोटा मोटी। लेकिन एक पनिशमेंट देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? मान लो तुम्हारे घर पे चोरी हुआ, उस चोर को हम पनिशमेंट देना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बात को समझना। किसी एक लड़की का रेप हुआ, उसे क्यों उसको हमें पनिशमेंट देना है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में या लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी बिलीव है कि आप जब इंटरव्यू जाओगे ना, आपको जेल, पनिशमेंट्स, ट्रायल तक ही नहीं रहेगा,
उसके बाद भी आपको बात पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम नहीं पूछा था, लेकिन मुझे लगता है कि पूछा जाएगा आपको, है ना। नाउ डेटरेंट थ्योरी को क्यों अप्लाई किया जाता था? ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, है ना, ताकि आप उस पनिशमेंट को ऐसा दे दो, जैसे कि आपको निर्भया के केस में, या निर्भया के केस का जो आफ्टरमथ था, जिसमें बोला गया कि अगर हीनियस ऑफेंसेस है तो भले ही वो जुवेनाइल से 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स के अंदर भी हो, तब भी उसको कैपिटल मतलब एडल्ट के हिसाब से ट्रीट करके पनिशमेंट दिया जा सकता है, करेक्ट। तो इट्स डेटरेंट थ्योरी पे बेस कर सकता है, ताकि तो सेट इन सिविल वी फाउंड दिस एसेंस इन एग्जाम्पलरी, है ना, समवेयर एग्जाम्पलरी डैमेजेस जब हम दे देते हैं तो सेट एन एग्जाम्पल कि नेक्स्ट टाइम लोग ऐसा काम नहीं करे, शादी का प्रॉमिस करके शादी नहीं किया, अल्टीमेट कोई लॉस नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, एक एग्जाम्पल सेट करना है, इसलिए एग्जाम्पलरी काइंड ऑफ डैमेज दे देते हैं। तो हियर डेटरेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हाट, कि लोगों को डर बैठे कि भाई ये काम करने से ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस सर, 18 इयर्स के नीचे का कोई अगर किसी ने मतलब क्राइम किया तो उसके ऊपर तो बॉक्स भी लगेगा। किसी ने किया तो हाँ लगेगा। तो अभी सपोजिटली 16 to 18 इयर्स वाले सपोज दे हैव कमिटेड सम क्राइम जिसमें सब बॉक्स भी अप्लाई हो रहा है, ये भी अप्लाई हो रहा है, बट द क्राइम इज ऑफ सच ए नेचर कि मतलब उसको अडल्ट के हिसाब से ट्राई किया जा सकता है 100 days, बट बॉक्स तो अलग है, तो मतलब No, 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 my dear. You are confused now. POCSO is an act, is an special act. It protects sexual offences against child, and who is a child? Under 18 years of age, either male, female, whomsoever. Now, if a boy of 12 years committed an offense against 13 years girl, say for example, penetrative intercourse or any kind of offenses, then definitely he will book under POCSO. Okay, but regarding punishment, then you have to go through the Juvenile Justice Care and Protection Act, just for the punishment वाला part. ऑफेंस तो हो ही गया, अब निर्भया के केस में उस बच्चे ने जो भी ऑफेंस किया था तो ऑफेंस तो प्रूफ हो ही गया था ना अंडर आईपीसी, बट पनिशमेंट की जब बात आती थी तब हम उसको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में देखते थे। सेम आज भी यही होगा। अब आप बोल रही हो कि मान लो कि वो बच्चा 16 to 18 ईयर्स का है और हीनियस ऑफेंस हुआ है, तो ऑब्वियसली ही विल बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट इन केस ऑफ पनिशिंग हिम, बट हिज ट्रायल विल बी गो अंडर पॉक्सो ओनली। नहीं समझी? क्या लगता है? कुछ डिफरेंट आपको, मतलब क्या कंफ्यूजन ये लगा ना कि अगर 16 इयर्स का बच्चा है, हीनियस ऑफेंस किया है, उसको ऐसे एडल्ट ही ट्रीट करेंगे, तो एडल्ट ट्रीट करने का सेंस क्या है? पनिशमेंट ना, हाँ मिलेगा उसमें। लेकिन आपने पूछा कि क्या वो पॉक्सो में बुक होगा ना आईपीसी में बुक होगा, करेक्ट, तो पॉक्सो में बुक होगा, क्योंकि अगर उसने ऑफेंस पॉक्सो का किया है तो। लेकिन पॉक्सो में तभी होगा सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंस होगा, मान लो मर्डर भी तो कर सकता है हीनियस ऑफेंस के अंदर, है ना, ठीक है दोस्त, ओके। Into chapter 2. Now, any other form of punishment, मतलब theory of punishment? Yes. तो हम लोग कैसा बात करता है? कुछ और खराब बोलो पहले। और क्या है? रेट्रीब्यूटिव, हाँ ऐसे बोलो, आई फॉर एन आई, है ना। रेट्री, इसका मतलब क्या है? तुमने जो किया है तुमको उसका भुगतना पड़ेगा। एन आई फॉर एन आई, फिल इन द ब्लैंक्स, जो लगता है कर लेना, है ना। तो ये रेट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुमने जो किया तुमको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना। भगवान दे नहीं दे हमको मतलब नहीं, हम लोग तो दे गए तुमको। बुझे पाए ऐसा नहीं था, यही बात है बीजो, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। तो इसको सपोर्ट महात्मा गांधी नहीं करते थे, ठीक है ना। वो बोलते ना, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना। तुमने मेरा चप्पल चोरी किया, हम तुम्हारा चप्पल चोरी करेगा तो फिर सबका चप्पल चोरी हो जाएगा फिर, है ना। तो बात वही है। फिर क्या आता है, मतलब हमें इतना डिटेल्स में थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में नहीं जाना होता है। मैंने एक पीडीएफ बहुत दिन पहले शेयर किया था जिसको सबने इग्नोर किया था, तो प्लीज़ उस पीडीएफ को पढ़ लेना थोड़ा, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में अगर तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो। देन प्रिवेंटिव थ्योरी, तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी? Imprisonment. He said कि imprisonment,
He said, Yuvraj said, simply only imprisonment itself is preventive. It is Chetri. Blanketly, to he is right. The moment you imprison someone, ultimately the object is to prevent the offense to commit twice. Secondly, या कुछ ना करे. सर वो कंसीलिंग का डिजाइन जैसे वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में डायरेक्ट अरेस्ट करते हैं तो प्रिवेंटिवली तो उसी ने हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पनिशमेंट देने की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे. तो उसको प्रिवेंटिव मतलब उसको कन्फाइन कर दिया, जेल में डाल दिया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए. सोलिटरी कन्फाइनमेंट इज द मोर एग्रेवेटेड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिवेंटिव ओनली. ओके. कंसीलिंग का डिजाइन में भी पनिश कर देते हैं तो उसमें भी तो आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट. हाँ मतलब कुछ भी आ सकता है. ये प्रिवेंटिव में लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये भी आ सकता है. ठीक है ना. मुझे बोला ना प्रिवेंटिव है. बात इम्प्रिजनमेंट तो इसमें भी आएगा ना बाबू, डिटरेंट में भी आएगा. इम्प्रिजनमेंट तो रेट्रीब्यूटरी में भी आएगा, इम्प्रिजनमेंट प्रिवेंटिव में भी आएगा. लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डालने का? डिटरेंट करने का है, रेट्रीब्यूटरी का है, प्रिवेंटिव का है. समझना मेरी बात को. जरूरी नहीं है कि एक पनिशमेंट के पीछे सारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, सारा हो सकता है. इज नॉट इट मिस्टर? हो सकता है सर. एक डेथ सेंटेंस से भी आप डिटर कर सकते हैं. आप एक डेथ सेंटेंस से डिटर भी कर सकते हो, रेट्रीब्यूटरी भी है वो, प्रिवेंटिव भी है. यस और नो? देन देयर इज ए थ्योरी लेस इंपॉर्टेंट. रिफॉर्मेटिव थ्योरी एक कैपिटल क्या बोलते हैं उसको, कैपिटलिस्ट कंट्री के लिए एक मिथ हो सकता है. लेकिन जो कंट्री हम जैसा कंट्री है, ठीक है, क्या कंट्री है हमारा, मतलब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं. ठीक है ना. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट वेलफेयर की बात नहीं करते हैं. मतलब कहीं ना कहीं हम इगलिटेरियन इस तरह का सोसाइटी में जीते हैं. तो इसीलिए हम ये बिलीव करते हैं कि रत्नाकर भी कभी वाल्मीकि था. तो एक आदमी आज जैसा है कल वो ठीक हो सकता है. तो रिफॉर्म करना है उसको. अगर आप कभी भी जेल गए हो एज ए क्लाइंट, एज ए मॉक्केल या एज ए लॉयर, तो आपको सुनने में शौक होगा अगर आप लोगों को नहीं पता है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट तिहाड़ जेल? ऑनलाइन दीपू हुनीसा, तिहाड़ जेल. तो क्या होता है ना, वहाँ पे कंप्यूटर है, वहाँ पे जो इनमेट्स होते हैं, जेल इनमेट्स, माइक ऑफ करा जा रहे होना से ऑनलाइन. तो वहाँ पे उनको कंप्यूटर सिखाया जाए, उनको खाना बनाना सिखाया जाए. ठीक है ना. तो उनको क्या किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है ताकि तुम अगर बाहर निकल के जाओ तो तुम एक अच्छे इंसान हो के जाओ. क्योंकि तुमने कोई ऑफेंस किया था, उस ऑफेंस को करने की वजह से तुमको ये पनिशमेंट मिला है, तुमको जेल मिला है. लेकिन ड्यूरिंग द जेल तुमको एक अच्छा इंसान बनाने का जो चेष्टा होता है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्मेटिव का एसेंस होता है. आज आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आज का ये जो कम्युनिटी सर्विस है ये कहीं ना कहीं आपका कौन से थ्योरी को प्रमोट कर रहा है, रिफॉर्मेटिव का. सो नाउ स्टेट इज अंडर प्लानिंग टू मेक कम्युनिटी सर्विस एज एन. थ्योरी में क्वेश्चन पूछे कि कैपिटल पनिशमेंट इज इट नेसेसरी हमारे कंट्री के लिए. आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा लॉ के में जहाँ पे आपका सजेशन का जरूरत हो. याद रखना, आपके कैपिटल पनिशमेंट को आपको ऐसे नहीं पूछ सकता है आपको. लेकिन लॉ पेपर में कि क्या कैपिटल पनिशमेंट इंडिया जैसी कंट्री के लिए सही है बुरा है, ये एनालिसिस का क्वेश्चन हमारे जुडिशरी में नहीं आता है. ठीक है, आएगा भी नहीं. एक्चुअली वो चीज़ ही तुमको बैक पूछ लेगा फिर. यस माय डियर. हाँ, आप तिहाड़ जेल नहीं, आप इंडिया का किसी भी जेल में जा सकते हो विजिट पास करके. आप लोगों को जाना है तो मैं आपको यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ. ठीक है. लेकिन तुम लोग बहुत दिन तक सोओगे नहीं, तुमको नींद नहीं आएगा बहुत दिन तक. अगर आपको जस्टिस देखना है तो जेल जाओ. मैं इसमें लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये मेरा इमोशनल ग्राउंड है, खींच जाएगा नहीं तो. रिफॉर्मेटिव थ्योरी कम विथ पेन नॉट टू द इनमेट्स, पेन टू द स्टेट. मेहनत करना पड़ता है उसमें. लोगों को रिफॉर्म करना बहुत टफ है, तो लोगों को विनाश करना उतना इजी है. ठीक है. इसलिए रिफॉर्मेटिव कौन रिफॉर्म हो रहा है? एक चोरी करके जब लड़का जाता है, वो चोरी 1000 कारण की वजह से किया होगा, है ना. वो जब जाता है और हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रहता है तो वो सीख जाता है कि मर्डर कैसे करना चाहिए. ठीक है. तो वो जो विजय दीनानाथ चौहान का बेटा जो अमिताभ बच्चन है,
वो भी तो पहले जेल गया, जेल जाके बड़ा गुंडा निकल के आया, कालिया बन के निकल के आया, डॉन बन के निकल के आया ना जब जेल में घुसा। पिक्चर ही बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको पिक्चर, आपको देश का पिक्चर दिखाता है कि यही है। आपने ये मूवी देखा हो ना, क्रिमिनल जस्टिस, बबलू भैया का जो, हाँ सीरीज, ठीक है भाई, वो जो बबलू भैया है उसमें, समझ गए ना, वो लड़का जो है क्रिमिनल जस्टिस का, अल्टीमेटली आपको जेल का जो ट्रू पिक्चर है, डैम ट्रू पिक्चर है, वो दिखाया, ठीक है। तो वॉट एवर, सो ये थ्योरी के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आने से भी तुम लोग वो जो PDF दिया है उसके ऊपर पढ़ लेना। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट टू फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। आपका प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, जरूरत पड़ा तो सेल कर सकता है। इसका प्रोसीजर आपको कहाँ मिलेगा? BNSS में मिलेगा, करेक्ट। देन फाइन इम्पोज किया आपके ऊपर, 10,000 रुपया फाइन। कोई कोई ऐसा भी पनिशमेंट तो होता है ना जहाँ पे ओनली फाइन होने से भी हो जाता है, यस ऑनलाइन, आपको फाइन इम्पोज कर दिया। और फाइन का क्या लिमिट है, कितना फाइन इम्पोज किया जा सकता है? रत्ना प्रिया चौधरी, दीपू किमान फाइन इम्पोज करो पड़े, विजू कितना फाइन लगा सकता है? अगर आपको दे दिया है कि 10,000 रुपया फाइन, 500 रुपया फाइन, 1,000 रुपया फाइन, तो ओके। अगर नहीं दिया हुआ है तो अनलिमिटेड, बट रीजनेबल, नॉट एक्सेसिव। चोरी किया, सामान चोरी हुआ, 500 रुपये का तुम पे लगा दिया 5 लाख रुपया फाइन, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में, तुमको समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? रीजनेबल, नॉट एक्सेसिव, है ना, ओके। से फॉर एग्जाम्पल आई इम्पोज 10,000 रुपीज फाइन एंड यू फेल टू पे फाइन, then what I can do? Then ultimately I will go ऊपर, imprisoned you. बट याद रखना कि अगर पेमेंट ऑफ फाइन नहीं दिया और तुमको अगर इम्प्रिजनमेंट हो रहा है तो हमेशा सिंपल होता है। क्या होता है? सुनना मेरी बात, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, सिंपल और रिगरस। और जब अगर फाइन नहीं देने के कारण अगर आपको इम्प्रिजन होता है तो जनरली क्या होता है? सिंपल होता है। इज इट राइट अनिकेत? ओके, these are the introductory thing about the punishment. Please directly come to section